کہ جماعت اسلامی کا فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں پاور شو۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا خطاب، کہا اللہ نے پاکستان کو ہر نعمت سے نوازا ہے، ہمارے پاس 65% نوجوان ہے، روزگار نہ ہونے سے نوجوان ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں، ہمارے ہاں آٹے اور گھی کی قیمتیں IMF طے کرتا ہے، انڈیا بنگلہ دیش کی معیشت ہم سے آگے ہے، ہم معاشی طور پر افغانستان سے بھی کمزور ہو گئے ہیں، پاکستان کو نواز نہیں، تعلیم کا حق اور روزگار چاہیے، فیصل آباد کی ترقی چاہیے تو ترازو پر مہر لگائے۔ جماعت اسلامی کا فیصل آباد دھوبی گھاٹ میں پاور شو۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کا جلسے سے خطاب، کہا اللہ نے پاکستان کو ہر نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں نمک کے پہاڑوں سے نوازا، ہمارے پاس 65% نوجوان ہے، ہمارے ہاں آٹے گھی کی قیمت IMF طے کرتا ہے۔ 1947 میں آزاد ہو گئے ہیں، ہم بھی انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے بعد 60 سالوں میں ایٹمی پاور بن گیا پاکستان، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو زرخیز زمینوں سے نوازا، 5 دریاؤں سے نوازا، 4 موسموں سے نوازا، 1000 کلومیٹر ساحل سے نوازا، معدنیات سے نوازا، کوئلے کے اتنے ذخائر کہ پاکستان کی انرجی 300 سالوں کے لیے کافی ہے، 25 کروڑ ڈالر مالیت کا کوئلہ، اللہ نے ہمیں نمک کے پہاڑوں سے نوازا، چاند سے بھی نظر آ رہا ہے، اللہ نے ہمیں ڈاکٹر قدیر جیسے کئی سائنسدانوں سے نوازا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے ساتھ ایک طرف جینیس اور قابل ترین باصلاحیت 65% نوجوان بھی ہے، اور اس سے بھی بڑی نعمت یہ کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا آخری کتاب قرآن حکیم بھی ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی ہے، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود، ان برکتوں کے باوجود، اللہ کے احسانات کے باوجود، میرے بھائیوں اور بہنوں، آج پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں IMF کے ہتھ کڑیاں ہیں، آج 25 کروڑ غیرت مند پاکستانیوں کی تقدیر کے فیصلے اسلام آباد میں نہیں، قومی اسمبلی میں نہیں، امریکہ، IMF اور ورلڈ بینک کے دفاتر میں ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت، چائے کی قیمت، دوائی کی قیمت، نمک کی قیمت، گنے کی قیمت، آٹا کی قیمت کا تعین ہم نہیں کرتے، IMF کے کلرک کرتے ہیں، ان کے ڈکٹیشن پر آج پورا ملک چل رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اس لیے آج ہم معاشی طور پر افغانستان سے زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، افغانستان کی افغانی پاکستانی روپیہ سے 3 گنا زیادہ طاقتور، بنگلہ دیش کا ٹکا ہم سے زیادہ طاقتور، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، انڈیا ہم سے بہتر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر کیوں آج پاکستان کا نوجوان گزشتہ کئی مہینوں میں 3 لاکھ نوجوان ملک چھوڑ گئے، وہ نوجوان جو ڈگری ہولڈر تھے، جو تعلیم یافتہ تھے، جو ذہین تھے، ہمارے نوجوان ہیں کشتیوں میں بیٹھ کر ملک چھوڑ رہے ہیں اور سمندروں میں ڈوب رہے ہیں۔ یہی حال ہوا ہے پاکستان کا۔ آج میں فیصل آباد والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، پاکستان کو نواز چاہیے یا ہمارے بچوں کو تعلیم کا حق چاہیے؟ پاکستان کے مظلوموں کو انصاف چاہیے، پاکستان کے نوجوانوں کو
रोजगार चाहिए, पाकिस्तान की माओ बहनों और बेटियों को तहफ्फुज़ चाहिए, पाकिस्तान के बुजुर्गों को वक़ार चाहिए, बेघर इंसानों को घर चाहिए। जमात इस्लामी का फैसलाबाद में पावर शो, शहर भर से मुख्तलिफ रैलियां काफिलों की सूरत में धोबी घाट पहुंची। पंडाल में कारकुनान पुरजोश रहनुमाओं का 8 फरवरी को जीत का सरप्राइज देने का। जमात इस्लामी का फैसलाबाद में सियासी ताकत का मुजाहरा, धोबी घाट में कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद रैलियों की सूरत में जलसागाह पहुंची। एन 104 से उम्मीदवार राना सिकंदर आजम की क़यादत में गुलिस्तान कॉलोनी से बड़ी रैली निकाली गई। लोग अब चाहते हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली हो और वाहद एक हल रह गया कि दयानतदार क़यादत हो, और उसके लिए जमात इस्लामी एक वाहद जमात है जिसकी लीडरशिप नीट एंड क्लीन है। PP 114 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार अब्दुल बीगा की क़यादत में सियाना रोड से रैली निकाली गई। PP 113 के उम्मीदवार अजमल हुसैन बदर की जानिब से मदीना टाउन से रैली जलसागाह पहुंची। ये जलसा जो है ये फैसलाबाद का तारीखी जलसा होगा और जमात इस्लामी के कायद इस पे स्पीच करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये फैसलाबाद का रुख मुतय्यन कर देगा और अल्लाह की मेहरबानी से तराजू जीतेगा फैसलाबाद से इंशाअल्लाह। सराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की आमद के लिए यहाँ इस PP 113 से हज़ारों वर्कर्स का एक इंशाअल्लाह बड़ा मौसर किस्म का काफ़िला जो है वो जा रहा है रैली की शक्ल के अंदर, और इंशाअल्लाह हम धोबी घाट के अंदर जलसे के अंदर भरपूर शिरकत करने जा रहे हैं। पंडाल में मौजूद कारकुन और शहरियों की नारेबाजी 8 फरवरी को तराजू की जीत के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन साबर अब्बास के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। के आम इंतखाबात में वक्त कम, मुकाबला सख्त, उम्मीदवार वोटर्स पोटर्स को कायल करने में मसरूफ है। राना सनाउल्लाह अपने हल्के में मुतहरिक, मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे। इंतखाबात में चंद रोज बाकी, उम्मीदवारों की सरगर्मियां रूज पर पहुंच गई। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह NA 100 में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। हल्के के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, चोहला और दांदरा के इलाकों में कार्नर मीटिंग में शरीक हुए। राना सनाउल्लाह का कहना था कि 2018 में हम कामयाब हुए, अक्सरियत होने के बावजूद हमारी हुकूमत नहीं बनने दी गई। इनका कहना था कि PTI हुकूमत ने इस इलाके में कोई काम नहीं कराया। 40 अरब डॉलर की मदद चाइना ने दी थी कि बिजली के कारखाने लगाओ, मोटरवेज बनाओ, आपके दुनिया आधी एक तरफ है आधी दूसरी तरफ है, आपके रास्ते से तजारत होगी, आपको महसूल की शक्ल में इतना पैसा मिलेगा कि आपकी जो है ना वो तमाम तर तरक्की जो है वो हो सके। राना सनाउल्लाह का कहना था कि हमारे दौर में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था, महंगाई कम, डॉलर 107 रुपए पर था, हमने लोड शेडिंग का खात्मा किया। इस वक्त महंगाई सबसे बड़ा मसला है, जीत कर दोबारा लीफ फराहम करेंगे, अवाम नफरत बढ़ाने वालों का रास्ता रोके। मैं बच्चों की दवाई लूं या बिजली का बिल दूं, मैं बच्चों की स्कूल की फीस दूं या मोटरसाइकिल में जो है वो पेट्रोल डलवाऊं, तो इससे बड़ी और मुश्किल कोई नहीं है। राना सनाउल्लाह ने जीत कर अपने हल्के में तरक्याती कामों के जाल बिछाने का आज़म किया। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद के प्रिजाइडिंग अफसरान के लिए खाना और बिस्तर मुहैया करने के अहकामात पर स्कूल सरबराहान को तहफ्फुज़ात, हुकूमत से इंतजामात के लिए फंड्स जारी करने का मुतालबा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात से एक दिन कबल प्रिजाइडिंग अफीसर्स के लिए इंतजामात करने के अहकामात पर स्कूल सरबराहान परेशान। कहा खाना और बिस्तर मुहैया करने के लिए डिप्टी कमिश्नर खुद फंड जारी करें या महकमा जात के सरबराहान को पाबंद किया जाए। गवर्नमेंट स्कूल सीनियर स्टाफ एसोसिएशन पंजाब के सरपरस्त आला हाफिज अब्दुल नासिर कहते हैं डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने तालीमी इदारों के सरबराहान को प्रिजाइडिंग अफीसर्स के लिए पोलिंग स्टेशन पर 7 फरवरी को खाना और बिस्तर मुहैया करने का पाबंद किया, लेकिन इसके लिए कोई फंड जारी नहीं किए। इससे हमें खुशी भी हुई, लेकिन हमने कहा कि शायद फंड्स हमें अलग से कुछ जारी किए जाएं। लेकिन उस वक्त मायूसी हुई जब उन्होंने कहा जी कोई फंड नहीं है, आपने खुद अरेंज करना है। तो हाई स्कूल के पास एक NSB होता है, तो बमुश्किल उससे वो यूटिलिटी बिल्स जो है ना अपने वो अदा कर। तालीमी इदारों के सरबराहान के पास इतने फंड नहीं होते कि वो ये इंतजामात कर सकें। हुकूमत फंड्स या प्रिजाइडिंग अफीसर्स के लिए खाने का भी एहतमाम करे। कैमरामैन रामिश के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। आम इंतखाबात से पहले सियासतदानों के दावपेश, फैसलाबाद में सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर पहुंच गया। इंतखाबी मैदान में उम्मीदवारों को मसाइल के हल की यकीन दहानियां, उम्मीदवारों की जानिब से हिमायत और वोटर्स की सपोर्ट के दावे।
इंतखाबात के करीब आते ही सियासी जोड़ तोड़ अपने अरूज पर पहुंच गया। फैसल आबाद के हल्का NN99 से आजाद उम्मीदवार मलिक उमर फारूक की इंतखाबी मुहिम। जगतपुरा में जलसा NN99 के उम्मीदवार इमरान वीनस ने हमायत का ऐलान कर दिया। मलिक उमर फारूक ने हमायत पर इमरान वीनस को इलाका मकीनों का शुक्रिया अदा किया। बोले, इलेक्शन से कबल माहौल साजगार हो रहा है, बड़े नाम दस्तबरदार नहीं बल्कि सपोर्ट भी कर रहे हैं। जड़ावाला के हल्का NH96 से नून लीगी मलिक नवाब शेर बसीर और PP 100 से सरदार खान बहादुर डोगर हल्कों में सरगर्म। चक चट्ठा, चक 58, चक 108 और चक 98 के इलाका मुअज़्ज़िज़ीन का नवाब शेर की हमायत का ऐलान। लकड़ावाला में बशीर कुरैशी, बाबा मंशा, इरफान गुलफाम अली शेर, सदाम सदीक, गुड्डू वकास अमीन कुरैशी ने खान बहादुर डोगर की हमायत का ऐलान किया। चक 7 में राना रफीक, राना मुर्तजा और राना मिठू ने पूरे ग्रुप के हमरा खान बहादुर के हिमायत कर दी। चक 571 में हाजी एहसान नंबरदार, फौजी इकबाल, चौधरी अकमल, हाफिज नूर, हाजी यासीन, चौधरी अफजाल, राना कासिम, नईम अख्तर और दिगर दोस्तों ने खान बहादुर डोगर के हिमायत का ऐलान कर दिया। PP 117 से लीगी उम्मीदवार ख्वाजा मोहम्मद रिजवान का शादाब कॉलोनी का दौरा। PTI के साबिक कारकुन मलिक अहसन ने ग्रुप समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। शेख कॉलोनी में अजहर हुसैन की रिहाइश गाह पर अकड़ ख्वाजा मोहम्मद रिजवान ने वोटर्स को नून लीग के मंशूर बारे आगाह किया। यूनियन काउंसिल 123 शहबाज टाउन में शेख आसिम गच्चा और चौधरी मुजाहिद जट की जानिब से जलसों का एहतमाम। ख्वाजा मोहम्मद रिजवान ने कहा कि कल कामयाब जलसे ने साबित कर दिया फैसलाबाद नून लीग का गढ़ है। शनियोट के हल्का NH94 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कैसर अहमद शेख सरगर्म। कैसर अहमद शेख की मोहल्ला गफूराबाद में साबिक मेंबर म्यूनिसिपल कमेटी दिलदार हुसैन शमसी के डेरे पर आमद। दिलदार हुसैन शमसी ने बरादरी के हमरा पुरतपाक इस्तकबाल किया और कैसर अहमद शेख की हमायत का ऐलान किया। मोहल्ला गफूराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कैसर अहमद शेख ने कहा कि इलेक्शन जीत कर सीवरेज सिस्टम सेंट्रलाइज करेंगे और हर गली पुख्ता बनाएंगे। जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुतहरिक N109 में शेख याकूब और PP 127 में राशिदा याकूब का पावर शो। जलसे का एहतमाम साबिक काउंसलर मलिक आबिद और खोकर बरादरी की जानिब से किया गया। जलसे में कारकुनान और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। मलिक बरादरी और खोकर बरादरी ने शेख याकूब की हिमायत का ऐलान किया। टोबत एक सिंह के हल्का PP 121 में पीपल्स पार्टी का अपने कारकुन पर एतमाद। स्टाम्प फरोश जुल्फिकार अली भुट्टो को सूबाई असम्बली का टिकट दे दिया। उम्मीदवार PP 121 जुल्फिकार अली भुट्टो की जानिब से इंतखाबी मुहिम जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जुल्फिकार अली भुट्टो का कहना था कि हल्के की आवाम का भरपूर तावन हासिल है। 8 फरवरी को कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी। इलेक्शन में जीत कर हल्के में तामीर और तरक्की के लिए भरपूर इकदाम करेंगे। उम्मीदवार इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हुमायूं अख्तर खान की बार एसोसिएशन तांतलियावाला आमद। उम्मीदवार PP 102 सिकंदर हयात जतोई। हुमायूं अख्तर खान के साहिबजादे कासिम अख्तर खान भी हमरा। सदर बार मुजाहिद वहनवाल और जनरल सेक्रेटरी हाफिज जाहिद सुहेल ने इस्तकबाल किया।